السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن میں کہیں گے خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر دیں گے ISI ہیڈ کوارٹر میں اہم بیٹھک کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں افغان عمل، علاقائی سلامتی اور ملک کے داخلی امور پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ایئر چیف، پاک نیوی کے سربراہ اور DG ISI نے شرکت کی۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ اسلام آباد سے دیکھیے عباس شبیر کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کا وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف بھی ساتھ تھے۔ سیاسی و عسکری قیادت کا استقبال DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کیا۔ عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ملکی سلامتی پر بریفنگ، علاقائی سیکیورٹی اور داخلی صورتحال پر مشاورت بھی کی گئی۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کر کے آنے والے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی خارجہ امور پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے ملک کو درپیش چیلنجز کے خلاف ISI کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور صلاحیتیں لائق تحسین قرار دیں۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کی ISI ہیڈ کوارٹرز یاترا کو انتہائی اہم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سابق وزیر داخلہ کی۔ چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی کے باعث حلف اٹھائے بغیر ہی واپس جانا پڑا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا، منفی ہتھ کنڈوں کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا۔ عباس نقوی کی رپورٹ۔ چودھری نثار کی پنجاب اسمبلی میں انٹری، مگر حلف اٹھانے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد مایوس لوٹنا پڑا۔ چودھری نثار 3.25 سال بعد پہنچے تو انہیں گلدستہ پیش کر کے استقبال کیا گیا۔ سیکرٹری اسمبلی کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر بعد حکام نے انہیں بتایا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے موجود نہ ہونے کے باعث آپ حلف نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کا اضافہ کیا جائے، اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا، یہ موقف بالکل غلط ہے۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، حلف برداری کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال کریں گے۔ پہلے بھی قانونی ہم نے رائے لی ہے اور مزید لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلے جائیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی گورنر پنجاب چودھری سرور کی عدم موجودگی میں قائم مقام گورنر کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری راجن پور میں مصروفیات کے باعث اسمبلی نہیں آئے۔ کیمرامین ندیم قاسم کے ساتھ عباس نقوی، سما، لاہور۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے وزیر اعظم کو ٹھنڈا کر کے کھانے کا مشورہ دے دیا۔ کہا، قوم کو تقسیم کرنے کی نہیں، متحد کرنے کی ضرورت ہے، کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں۔ آپ کا قائد کون ہے، نواز شریف یا مریم نواز؟ سوال پر بولے، 2 دن بعد پھر لاہور آنے کا ارادہ ہے، کھل کر بہت سے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، بالکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے۔ آج اس ملک کو انتہائی ضرورت ہے افہام و تفہیم کی، قوم کو متحد کرنے کی، تقسیم کرنے کی۔ عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت، ان کو مشورے کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا عمران خان کو کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ حکمران کو سب سیاسی نقطہ نظر کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لاہور میں بیٹھ کر یہ فیصلے نہ کریں، میرے حلقے میں جائیں کہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں یا نہیں۔ سیاسی معاملات پہ میں بھی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی نہ کوئی لائن نکل آتی ہے۔ آپ کے قائد کون ہیں؟ نواز شریف ہے، مریم نواز ہے؟ آپ کیوں بضد ہیں کوئی نہ کوئی میرا قائد بنانے میں؟ 2 دن کے بعد میرا پھر لاہور آنے کا ارادہ ہے، کھل کے انشاءاللہ بات ہوگی، پھر میں بہت سے سوالوں کا کھل کر جواب دے سکوں گا۔ میں بھی واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ خبردار جو باہر نکلے، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا حزب اختلاف کے پارلیمانی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ جاری ہے۔ اسلام آباد منسٹر انکلیو میں ہونے والی بڑی دعوت میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں۔ عشائیے میں کون کون آیا اور کیا گفتگو ہو رہی ہے، جان لیتے ہیں۔ سماج کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، اپوزیشن لیڈر کی بڑی دعوت سے متعلق آگاہ کیجیے، کون کون شریک ہے اور کیا گفتگو ہو رہی ہے اس میں؟
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का जो डिनर था वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज़ हो गया है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शहरी रहमान है और राजा परवेज़ अशरफ है, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और साथ ही साथ JUI और जो बाकी दीगर छोटी जमातें हैं जो कि ख़ास तौर पर PDM में शामिल थी, वो तमाम पार्लिमानी रहनुमा जो हैं वो इस इशाइये में शरीक हैं। और बुनियादी एजेंडा जो बताया जा रहा है वो यही है कि शहबाज शरीफ अब एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लाइक माइंडेड है, जो हम ख्याल अपोजिशन की जमातें हैं, उनको एक बार फिर मुत्तहिद किया जाए। मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है वो एक साथ बैठा जाए, जो कि PDM का शराजा बिगड़ गया था, अब उसको समेटने की एक कोशिश की जा रही है। और चूँकि 29 तारीख को PDM का सरबराही इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें चूँकि ये सारे मामला तय करने हैं, इसलिए एक इब्तदाई तौर पर जो बातचीत होनी है, जो हिकमत अमली तय की जानी है, उसके लिए ये बुनियादी तौर पर इशाइया पर पार्लिमानी रहनुमाओं को मदद किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। PGM माजी का अफसाना बन चुकी है, इसे भूल जाना ही बेहतर है। बाबर अवान का शहबाज शरीफ को मशवरा। प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, शहबाज शरीफ का राउंड उतने दिन चलेगा जब तक अदालती फैसला नहीं आता। अगर केस का फैसला उनके हक में आ गया तो वो अपोजिशन जमातों से बेवफाई करेंगे। बात यह है कि PDM माजी मरहूम का एक ऐसा अफसाना है कि जिसको भूल जाना ही बेहतर है PDM जमातों के लिए भी। अब ये तीसरा राउंड जो शहबाज शरीफ लगा रहे हैं, ये उतने दिन चलेगा जितने दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस नहीं लगता। अगर उस केस का फैसला उस तरह से हो गया जिस तरह की उनकी ख्वाहिश है, तो फिर आप देखिएगा कि ये सारे इधर ही छोड़ के और एक दफ़ा फिर वो बेवफाई की दास्तान दोहराएंगे PDM के दोस्तों के साथ। लेकिन अगर फैसला आ गया नैब या गवर्नमेंट के हक में, तो फिर वो दोबारा कहेंगे कि मैं अब एक ज़बरदस्त किस्म की तहरीक चलाएं। मैं एक नुक्ते में सारा बयान कर देता हूँ। ये जितनी तहरीकें, इन सब का मतलब है NRO। NRO का जवाब है नो NRO। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को इशाइया दिया, PDM को नहीं। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इशाइये में इस मामले पर बात होगी। वो प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रही थीं। ये जो इशाइया है ये तो PDM की तरफ से नहीं है, सही। ये इशाइया तमाम अपोजिशन पार्टीज को जिनके लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, एज अपोजिशन लीडर उन्होंने उनको इशाइये में बुलाया है। और जाहिर है एक लंबी कैद काटने के बाद जो है वो बाहर आए हैं। सो हाउस में अपोजिशन पार्टीज को मौसर नुमाइंदगी करने के लिए, उनका रोल अच्छा करने के लिए अपोजिशन लीडर के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जहाँ ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो अपोजिशन, उनको ये कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी होती है। देखिए इसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल है। और जैसे मुंतखब हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एज अपोजिशन लीडर, वो बहुत कंसर्न का बायस है और यही एक इशू है जो PDM के अंदर जो है अब वो जाना है। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त वापस ले ली। अपोजिशन लीडर के वकील का कहना है कि ECL से नाम निकालने की नई दरखास्त में शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला भी उठाया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका है। ब्लैक लिस्ट के मामले पर अब हाई कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। लीगी रहनुमा के वकील ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। चूँकि उस पिटीशन की पेंडेंसी के दौरान प्रीवियस ऑर्डर के बाद उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, तो उसको चैलेंज करना जो है वो साइल का हक है। और उसको चैलेंज किए बगैर जो है वो उनका जो बाहर जाने का राइट है वो उनको प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा पर सरकारी वकील ने एतराज किया और बताया कि अदालत आलिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर लीगी रहनुमा के वकील अमजद परवेज ने कहा कि इस दरखास्त पर इल्तवा न दिया जाए, इससे वो ECL वाला मामला चैलेंज नहीं कर सकेंगे। नई दरखास्त में एयरपोर्ट पर रोके जाने वाला मामला भी उठाया जाएगा। हम अपना जो हक है तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल करने का वो महफूज रखते हैं, क्योंकि कोरोना SOPs की वजह से फाइल नहीं हो सकी थी। दलाइल के बाद जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरखास्त वापस लेने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ECL में नाम के खिलाफ क्लाइंट से हिदायत के बाद दरखास्त दायर की जाएगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात को पार्टी के लिए मुश्किल करार दे दिया। PTI कोर कमेटी के इजलास में शुरका का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सरकारी ज़राए का इस्तेमाल चैलेंज बन जाएगा। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का भी असर पड़ सकता है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट।
آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات پر تحریک انصاف کے رہنماؤں میں اہم مشاورت۔ وزیر اعظم نے پارٹی کو خبردار کر دیا، کہا الیکشن آسان نہیں، محنت کرنا ہوگی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس میں ارکان نے کہا کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں پارٹی کے امیدواروں کی شکست کا آزاد کشمیر کے الیکشن پر اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں برسر اقتدار نون لیگ کی حکومت سرکاری ذرائع کو الیکشن مہم کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور قانون کے مطابق آزاد کشمیر میں انتخابات نگران سیٹ اپ کی بجائے موجودہ حکومت ہی کراتی ہے۔ شرکا کے دلائل سننے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن مشکل ہوں گے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نعیم شعبہ، سما، لاہور۔ خبردار جو کل رات 8 بجے کے بعد گھروں سے باہر نکلے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت نے صوبے میں کرفیو جیسے اقدامات کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے والوں سے پولیس نمٹے گی۔ مغرب کے بعد پارکس کی لائٹس بھی بند کر دی جائیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ شٹر گرانا نہیں چاہتے مگر میتیں اٹھانا بھی نہیں چاہتے۔ اب ایک بار پھر حکومت کو وہ مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کرفیو لگایا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ چیزوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ میرے بھائی، حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شٹر گرانے کا، لیکن حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی میتیں اٹھانے کا۔ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور اس لیے سندھ حکومت نے یہ سخت فیصلے کیے۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، شٹر بند کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ان ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہجوم سے ہے، ہمارا اختلاف لوگوں کے غیر ضروری اپنے گھر سے نکلنے پر ہے۔ اگر حکومت نے کہا ہے کہ 6 بجے چیزیں بند ہو جائیں گی تو آپ حکومت کا ساتھ دیں، ورنہ خام خواہ میں حکومت کو پھر اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ امتحان تو دینا ہوگا، تفصیلات کچھ ہی دیر بعد۔ اگلی جماعت میں جانا ہے تو امتحان پاس کرنا ہوگا۔ صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں بڑا فیصلہ ہو گیا۔ صوبے 20 جون کے بعد امتحانی شیڈیول خود جاری کریں گے۔ موسم گرما کی چھٹیاں بھی معمول سے کم ہوں گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کا زور ٹوٹ رہا ہے، تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھل رہے ہیں۔ پچھلے سال والی عیاشی اب نہیں ہوگی، تمام جماعتوں کے امتحانات ہر صورت لیے جائیں گے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ویڈیو لنک بیٹھک میں اہم فیصلہ۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں امتحانی مراحل بھی طے۔ وزارت تعلیم کے مطابق 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلبہ دوسرے مرحلے میں امتحان دیں گے۔ دوران امتحان کورونا SOPs کی پاسداری لازم۔ نتائج میں تاخیر کی صورت میں جامعات پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر طلبہ کو داخلے دینے کی پابند ہوں گی۔ اس سال گرمیوں کی لمبی چھٹیاں بھی نہیں ہوں گی۔ کس صوبے میں تعلیمی ادارے کتنے عرصے کے لیے بند ہوں گے؟ صوبائی حکومتیں تعطیلات کے دورانیے کا فیصلہ اپنے حالات کے مطابق کریں گی۔ بلیٹن میں آگے دیکھیے آپا کے ٹیکے۔ مارشل آرٹس، فٹ بال، کرکٹ، بائک چلانے کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اب ویکسینیشن ایکسپرٹ بھی بن گئی ہیں۔ صحافیوں کو ٹیکہ لگا دیا۔ راولپنڈی پریس کلب میں صحافیوں کے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ عمر بن آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کے دوران کام کرنے والے فرنٹ لائن ورکرز کو وبا سے بچانے کا مشن۔ راولپنڈی پریس کلب میں ویکسینیشن سینٹر قائم۔ مشیر اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے صحافیوں کو خود ویکسین کے ٹیکے لگا کر افتتاح کیا۔ صحافی بھی مشیر اطلاعات پنجاب کی انجیکشن لگانے کی مہارت کے معترف۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ فردوس عاشق آوان نے مجھے ویکسین کی ڈوز دی ہے پہلی۔ بالکل لائٹ سا ہاتھ تھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ مختلف معاملات میں وہ اپنا لوہا منوا چکی ہیں۔ میڈم نے ٹیکہ لگا دیا اور کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی، کوئی چکر نہیں آئے، کوئی منہ میں ذائقہ نہیں آیا، کہیں پین نہیں ہوئی اور ابھی تک ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں جیسے پہلا تھا۔ فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا تبدیلی سرکار نے صحافیوں کو ٹیکے ہی نہیں لگائے، ان کے دکھ درد بھی بانٹے ہیں۔ حکومت جو ہے وزیر اعظم کی قیادت میں پہلے دن سے آپ کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کی صحافتی برادری کے مسائل اور مشکلات کے تدارک کے لیے کوشاں ہیں۔ راولپنڈی پریس کلب کے ویکسینیشن سینٹر میں صحافیوں کو صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک ٹیکے لگائے جائیں گے۔ باکس بے چیک پوسٹ کے نزدیک نیوی اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں نیوی اور پولیس اہلکاروں کو لڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے چیف کرائم رپورٹر احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
अमर, क्या वजह थी झगड़े की? जी देखिए, अभी झगड़े के हवाले से वजूहात तो सामने नहीं सकी हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि इस पे तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। हॉक्सबे की चेक पोस्ट है ये पुलिस की, वहां पर ये झगड़ा हुआ था नेवी एहलकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान। इस झड़प की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मोबाइल से किसी शहरी ने ये फुटेज बनाई और उसके बाद ये सोशल हो चुकी है। झगड़ा गुज़िश्ता रोज पेश आया था। काम का ये कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। अब जो है वो जो भी उनका ये कहना है कि इसमें करार वाक़ई सज़ा उसको दी जाएगी जो इसमें मुलव्वस होगा। जी, ये बिल्कुल भी अच्छे मनाजिर नहीं हैं। हॉक्सबे चेक पोस्ट के नज़दीक नेवी और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हुई है। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फुटेज में नेवी और पुलिस के एहलकारों को लड़ते हुए देखा जा सकता है। वजूहात क्या हैं अभी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन तहकीकात की जा रही हैं और जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रहमान खान। लाहौर में पाकिस्तानी निशात बरतानवी लड़की के कत्ल की तफ्तीश में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम ज़ाहिर जदून ने पुलिस हिरासत में मायरा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। वजूहात भी बताईं, जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। लंदन पलट लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मायरा की जान क्यों ली गई? 21 दिन बाद अहम इंकशाफात सामने आ गए। मायरा के कत्ल का एतराफ उसके दोस्त ज़ाहिर जदून ने किया, जिसकी गिरफ्तारी 20 दिन तक पुलिस के लिए चैलेंज बनी रही। हुक्काम के मुताबिक तफ्तीश के दौरान ज़ाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म करते हुए वारदात की वजह भी बता दी। ज़ाहिर जदून ने पुलिस को बयान दिया है कि मायरा को 3 मई के सुबह तशद्दुद के बाद खुद गोली मारी, जिसका इल्म मकतूला की दोस्त इकरा को भी था। कत्ल की वजह मकतूला के साथ इख्तलाफात थे। मायरा गैर इखलाकी वीडियोस और तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करती थी। मुल्जिम के मुताबिक वक़ुआ के रोज वो नशे की हालत में थी। इस दौरान झगड़ा हुआ और मायरा को कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने ये भी इंकशाफ किया कि मकतूला 2 साल से अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं थी। वालिदैन को दुबई में इंटर्नशिप का बताकर लाहौर में रिहाइश पजीर थी। मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में मकतूला की दोस्त इकरा और साद अमीर भट्ट से तफ्तीश की गई, जो अभी भी जेरे हिरासत है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम का बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में केस का चालान तैयार किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध में 50% पानी चोरी हो रहा है, पता लगाया जाए ये पानी कहाँ जा रहा है। इरसा ने सिंध हुकूमत को पानी चोरी की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। सिंध में पानी चोरी क्यों हो रहा है? पानी की चोरी और ज़िया से सिंध का काश्तकार मुतासिर हो रहा है। सूबे में 50% पानी की चोरी रोकने के लिए इरसा ने सिंध सरकार को खत लिख दिया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जानिब से सिंध हुकूमत को लिखे गए खत में बताया गया है कि 14 मई से सक्खर बैराज पर 16,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कोटरी तक पहुँचते पहुँचते 8,000 क्यूसिक रह जाता है। बाकी 8,000 क्यूसिक पानी कहाँ जाता है, तहकीकात कराई जाए। खत में कहा गया है कि सिंध कोटरी की नहरों में पानी की किल्लत का शोर मचा रहा है। सिंध हुकूमत सक्खर से कोटरी बैराज के दरमियान पानी की चोरी रोकने के हवाले से इक़दाम करे। पानी की तकसीम के मामले पर सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। इरसा मामले पर करारदाद की मुखालिफत क्यों की? सुहेल अनवर सयाल ने तहरीक इंसाफ के अली को आड़े हाथों लिया। कहा जो सिंध को पानी नहीं देगा उसके घरों में घुस जाएंगे। मानना चाहिए इनको। आज कौमी असेंबली में इन्हीं के एमएनएस ने, एक चुप करके सुनो, इन्हीं के एमएनएस ने आज एडमिट किया है कि पानी का जो अकार्ड है उसकी हम चोरी कर रहे हैं। एक ही शर्म आनी चाहिए तुमको। पानी के हक पे डाका डालते हो और बात करते हो, शर्म आनी चाहिए। बकवास करते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि पानी का हक, सिंध के हक का पानी चोरी करते हैं। और ये कहते हैं इनके अटॉर्नी जनरल जो है पानी तस्लीम किया है, इनका जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में घुसेंगे। सिंध के पानी का हक खाएगा उनके घरों में घुसेंगे। सिंध का जो हक खाएगा उसके घरों में घुसेंगे। दरवाजे पे निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। आज बकवास करते हो, झूठा पानी, सिंध के पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को बर्बाद कर दिया। सूबा मिलने तक सिंध हुकूमत से जान नहीं छूटेगी। एमकेएम पाकिस्तान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। आमिर खान कहते हैं जाली डोमिसाइल के जरिए कराची के नौजवानों से नौकरियों का हक छीना जा रहा है। विफाक आर्टिकल 239 में तब्दीली करे। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत जिसने पूरे सूबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सिंध हुकूमत से जान जब तक नहीं छूटेगी जब तक हमको हमारा सूबा नहीं दिया जाएगा।
जाली डोमिसाइल के जरिए सिंध के कराची के नौजवानों की नौकरियों का हक छीना जाता है। ऐसी सूरत हाल में 18वीं तरमीम के जरिए पूरे सूबे सिंध के ऊपर सिंध हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है। वफाक से भी ये मुतालबा करते हैं कि आइन के अंदर तब्दीली करें, आर्टिकल 239 के अंदर तब्दीली करें और जो सूबे को इख्तियार दिया हुआ है कि वो सूबे बनाने के अंदर उसके पास जो अथॉरिटी है वो इख्तियार ख़त्म किया जाए और वफाक फैसला करे। जब सूबे अपने सूबे के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाने का इख्तियार रखते हैं तो फिर वफाक को भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सूबे बनाए। मुहाजिर वोट बैंक बचाना है, शहरी सिंध अलायंस बनाना है। जी हाँ, ये अलायंस कौन बना रहा है और किससे राब्ते हो रहे हैं, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। बिल्कुल, शहरी सिंध के इलाकों में महाजिर वोट बैंक को बचाने के लिए जो है शहरी सिंध अलायंस बनाने पर जो है काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जो है वो शुरू कर दी गई हैं। पहले मरहले के अंदर जो है महाजिर लीडरान को जो है इत्तेहाद में लाने के लिए राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से जो है MKM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और महाजिर इत्तेहाद तहरीक के सरबराह हैं सलीम हैदर, वो काफ़ी मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। एक बैठक भी लगी जिसमें जो है डॉक्टर सलीम हैदर, फारूक सत्तार और दीगर अकाबरीन ने जो है वो शिरकत की है। इस पर कहा जा रहा ये है कि जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर कराची के और शहरी इलाके जो हैं सिंध के, उसके जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर माशी माशराती मसाइल हैं, इसके अलावा रोज़गार के असूल का मामला है और जो शहर की तामीर और तरक्की जो रुकी हुई है, इस पर जो है यकजा होकर जो है आवाज़ बुलंद करना होगी। इसी हवाले से जो है शहरी सिंध अलायंस बनाने की जो है अब बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, जो हमारे ज़राए भी बता रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि जल्द आने वाले दिनों में जो है इस अलायंस के लिए बाकायदा MKM पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी और पाक ज़मीन पार्टी PSP के रहनुमाओं से भी जो है बातचीत की जाएगी। कहा जा रहा है कि जो हमारी रहनुमाओं से बात भी हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम चाहते हैं जो महाजिर लीडरान हैं वो एक साथ बैठ जाएं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं कराची और हैदराबाद के, उस पर जो है एक तवाना आवाज़ जो है भरपूर आवाज़ बुलंद हो सके। तो कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती कर दी गई है। सदर, बंस रोड समेत दीगर बेशतर इलाकों में पुलिस ने दुकानें शाम 6 बजे के बाद ही बंद करवा दी। दूसरी जानिब सिंध के दीगर शहरों में हुकूमत का दोहरा मयार दिखाई दे रहा है। ठट्टा और लाड़काना में हुकूमती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराह के दोनों अतराफ होटल्स और दुकानें खुली हुई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया और पुलिस दोनों गायब हैं। बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है और अगर दूसरी ही जानिब बात करें सिंध के दीगर शहरों की तो हुकूमत का दोहरा मयार दिखाई दे रहा है। सिंध हुकूमत का ठट्टा में हुकूमती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराह के दोनों अतराफ होटल्स और दुकानें खुली हुई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया और पुलिस दोनों ही गायब हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ के ये मनाजिर हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में मजीद SOPs सख्त कर दी गई हैं। मजीद जो है वो 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें ठट्टा के मनाजिर तो आप देखें कि तमाम तर जो दुकानें हैं वहाँ पर खुली हुई हैं। किसी किस्म की कोई रोकथाम यहाँ पर नहीं है। अगर इसको हम कहें कि ये दोहरा मयार है सिंध हुकूमत का तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है। सदर, बंस रोड समेत दीगर बेशतर इलाकों में पुलिस ने दुकानें शाम 6 बजे के बाद ही बंद करवा दी और दूसरी जानिब सिंध के दीगर शहरों में हुकूमत का ये दोहरा मयार नजर आ रहा है। ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमत का इनकलाबी प्रोग्राम, वज़ीर आज़म ने मोबाइल सेविंग वॉलेट्स, एहसास बचत बैंक अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा, जब ख़वातीन की मदद की जाती है तो गुर्बत तेज़ी से कम हो जाती है। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया। ये कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया मुतासिर तबके को, इस वक्त जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शफाफियत से मुतासिर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये जो आज आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आए हैं, तो वो फिर उनको कंट्रोल आ जाता है अपनी ज़िंदगी पे। वो पैसे बचा सकती हैं, वो बिजनेस शुरू कर सकती हैं।
जब ख्वातीन की मदद की जाती है सबसे तेजी से गुर्बत कम होती है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेशन है, लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी, तो उसने पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम करने। जब गुर्बत कम हुई वो कौम भी ऊपर चलेगी। हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है, पूरा जोर लगा रहे हैं कमजोर तबके को ऊपर उठाएं। मोबाइल वॉलेट ख्वातीन के लिए किया है, इसका मकसद ही ये है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म गलत बयानी से मौशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केटिंग से मुल्की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा, इमरान खान ने 90 रोज़ में मुल्की मईशत ठीक करने का कहा था, आज 1011वां दिन है। मुल्की मईशत कब ठीक होगी? इमरान खान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके, मुआफ़ी मांगें। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह को पुरानी कोरोना रिपोर्ट जमा कराने पर PSL 6 से बाहर कर दिया गया। इस पर बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, इतना बड़ा इवेंट है, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 6 से फास्ट बॉलर नसीम शाह को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह को प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करने पर लाहौर के मुकामी होटल में कायम आइसोलेशन से रिलीज कर दिया गया। जबकि पीसीबी का ये कहना है कि नाकाबिले कबूल PCR टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाने की वजह से नसीम शाह 26 मई को अबू धाबी रवाना नहीं होंगे और नसीम शाह ने इस मौके पर 18 मई को किए गए कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाई, जबकि 22 को दूसरा होना था। नसीम शाह पुरानी रिपोर्ट जमा करवाने पर उन्हें होटल की लैदा मंजिल पर आइसोलेशन में रखा गया था और 3 रुकनी इंडिपेंडेंट मेडिकल एडवाइजरी पैनल की सिफारिशात पर रिलीज का फैसला किया गया। जबकि फास्ट बॉलर नसीम शाह से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था ठीक है, बहुत शुक्रिया।